This conference will now be recorded. Thank you very much. Very good afternoon and very warm welcome to all the delegates present for this meeting and our today's speaker, Dr. Shivani Gupta Madam. Welcome to you too. Today we are having another free lecture on pre-diabetes from lab to OPD, which will be delivered by Dr. Shivani Gupta Madam. Before the start of the lecture, I would like to request all the delegates, please turn off your camera and put your mic on mute mode. Please do not try to talk in between the lecture as it is quite disturbing to the speaker and delegates also. If you are found to be talking in between the lecture, you will be removed from the meeting. Please keep in this mind. We have launched our another series which is demanded since long from our delegates, that is series on infertility, and it is named as Putriya. And in this series, we are completing whole infertility and infertility management. There will be 7 speakers who are talking on male infertility and 7 different speakers talking on female infertility and management. So total there will be 14 lectures by 14 different speakers, and the topics covered will be from the causes, investigation, management, and panchakarma in infertility till the Uttarbasi in male infertility and Uttarbasi in female infertility. So I would like to request our delegates to please join our this series named as Utriya. There will be special concession for our old delegates and students also. Please join with us for this knowledge sharing festival. And this series, that is Putriya, is will be commencing from 26th of May, and it will be for 14 days. Coming to this today's free lecture, today we are offering you our free lecture number 28 for our beloved delegates, and we are having another eminent speaker with us, Dr. Shivani Gupta Madam. I would like to request Dr. Amit Chavan sir to please introduce today's speaker, Dr. Shivani Gupta Madam. Over to you, Dr. Amit Chavan sir. Thank you so much, Dr. Mangesh Patil sir. It gives us an immense pleasure to introduce the most young and dynamic speaker, Dr. Shivani Gupta Madam. Dr. Shivani Gupta Madam is currently working as an associate professor at YMT Ayurvedic Medical College and Hospital, Kharghar, Navi Mumbai. Madam has completed her BMS from Government Ayurvedic Medical College and Hospital, Varanasi, Uttar Pradesh, and MD in Rog Nidan and Vikruti Vigyan from National Institute of Ayurveda, Jaipur, Rajasthan. Madam is having a total of 8 years of experience in teaching and total 15 years of experience in clinical practice. Madam is also pursuing her PhD from Maharashtra University of Health Sciences on the subject of diabetes mellitus type 2.
Madam is the founder and CEO of Borealis Blessing, one of India's sparkling startup in healthcare sector. Madam is the one to address dermatological disease and all skin cancers of women. She is having 15 plus years of experience in clinical practice and offers Ayurvedic modalities for treatment, which are customized and targeted care. Madam is also having a keen interest in academics and also has published numerous articles in various reputed national and international platforms. Madam was also one of our jury members in Swastayu paper presentation, which was conducted by Ayurshala in the month of Feb 2021. Outside of work, Madam is also having her work in meditation and yoga. Also, she is having hobbies such as writing poems, blogs in Ayurveda, podcasts, and sharing her thoughts. So I hereby welcome such an enthusiastic, young and dynamic speaker, Dr. Shivani Gupta Madam, to deliver her lecture on pre-diabetes from lab to OPD. Over to you, Dr. Shivani Gupta Madam. Thank you, sir. First of all, I want to thank Team Ayurshala for providing me this opportunity. It really feels very much elated when you got an opportunity to talk to the consultant about something which is a challenge for the medical fraternity. Pre-diabetes is a topic which is always fascinating to me since I have taken this topic for my post-graduation. And what I have seen in clinical practice that pre-diabetes is quite a ignored part when we talk about the concern of patients and concern of the clinicians. That's why I choose this topic, and let's start with having an insight of pre-diabetes. While we are talking about this disorder, it is observed that those people who are still not diabetic, but they have some alterations in their sugar level, they are more prone to develop different sort of cardiovascular disorders, coronary disorders, and organ failure of vitals of the body. Along with that, those women who are pre-diabetic or who develop the gestational diabetes are prone to develop more complications than the normoglycemic individuals. So purpose of this session is to help Ayurveda physicians to make strategies for effective screening, intervention, and follow-up of prediabetes. So today's topic will cover these parts: the definitions, relevance, pathophysiology, laboratory and clinical diagnosis, along with the management in the OPD level for prediabetes. So what is prediabetes? Whenever a person who is having hyperglycemic state, which is above the normal glycemic parameter but still below the diabetes threshold, is known as diabetes. So what does this definition means? It is explained in this slide. If you can see, the green line shows the normal parameters which are associated with normoglycemic. ऐसे persons को हम लोग normoglycemic कहते हैं. अगर पेशेंट का फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज less than 100 mg per dl है, he would be considered as the normoglycemic. अगर आफ्टर 2 आवर्स, जिसको हम लोग यूजुअली पीपी बोलते हैं, पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर बोलते हैं, अगर ओरल ग्लूकोज देने के बाद उसका टॉलरेंस 140 mg per dl है, इट वुड बी कंसिडर्ड एज नॉर्मोग्लाइसेमिक. और जो पेशेंट का HbA1c लेवल है, अगर वो 5.7 से कम है, तो ये नॉर्मोग्लाइसेमिक पर्सन के डायग्नोस्टिक फीचर्स होंगे. वही अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जो है वो 100 से 126 mg per dl के बीच में होगा, it would be known as impaired fasting glucose. Okay, IFG. It is associated with the pre-diabetic diagnosis.
सो 100 से लेकर के 126 mg per dl के बीच का अगर फास्टिंग शुगर है, वी हैव टू कंसिडर दोज पीपल एज प्री डायबिटिक। या फिर जो 2 घंटे बाद सैंपल लेते हैं, उसमें फास्टिंग में सैंपल लेने के बाद अगर 2 घंटे शुगर 75 ग्राम ग्लूकोज पेशेंट को देते हैं ओरल, और उसके बाद 2 घंटे बाद का जो सैंपल लेते हैं, इसमें अगर पेशेंट का शुगर का लेवल 200 mg per dl या से लेकर के 140 mg per dl के बीच का अगर है, would be considered as a pre-diabetic। अगर 200 से ऊपर जाता है, it would be considered as a diabetic person। सेम थिंग विद HbA1c, अगर 6.5 से लेकर के 5.7 के बीच का अगर HbA1c है, it would be a intermediate rise in sugar levels and it would be considered as the pre-diabetic person। तो ये 3 पैरामीटर हैं। What we have to remember कि फास्टिंग, 2 आवर प्लाज्मा ग्लूकोज एंड HbA1c, ये 3 क्राइटेरियाज हैं। इन तीनों में से हर पर्सन टू पर्सन ये वैल्यूज अल्टर हो सकती हैं। किसी का फास्टिंग आपको ज्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा इन बिटवीन द हाइपरग्लाइसेमिक या नॉर्मोग्लाइसेमिक कंडीशन, जो कि प्री डायबिटीज के डिफिनेशन में आता है, लेकिन उसका जो पोस्ट प्रैंडियल होगा या 2 आवर OGTT होगा, वो नॉर्मल होगा। किसी पर्सन में आपको उसका फास्टिंग नॉर्मल मिल सकता है और OGTT जो होगा वो राइज मिल सकता है। क्योंकि इस टाइम पर, जिस टाइम हम लोग प्री डायबिटीज की बात करते हैं, शुगर लेवल्स जो होते हैं वो कंसिस्टेंट नहीं रहते। समटाइम दे आर गोइंग टू बी नॉर्मल रेंज, समटाइम दे आर गोइंग टू इन द एलिवेटेड स्टेट। तो इसके लिए जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का इंस्ट्रक्शन है, इट शुड बी कंफर्म्ड। अगर आपको कभी भी पेशेंट के ब्लड शुगर लेवल में ये अल्टरेशंस मिलते हैं, तो इसको मोर देन 1 टाइम आपको कंफर्म कराना है। okay? तो 3 के पैरामीटर्स हम लोग लेते हैं, फास्टिंग, पोस्ट प्रैंडियल और HbA1c। ये तीनों पैरामीटर्स एक से ज्यादा टाइम पे अगर आपको सेम रिजल्ट्स देते हैं, एट दैट टाइम यू कैन डायग्नोज दैट पर्सन एज प्री डायबिटिक। तो फास्टिंग में 100 से लेकर 126 mg per dl के बीच का रेंज, OGTT में अगर 140 से लेकर 200 mg per dl का रेंज मिलता है, और HbA1c में 5.7 से 6.5 के बीच का अगर रेंज मिलता है, तो these parameters would be associated with prediabetes। This is the definition given by American Diabetes Association। यहाँ पे हमेशा जो बात याद रखनी है वो ये कि हर एक पर्सन में जो डायबिटीज के लिए रिफ्लेक्सेस होते हैं, वो कभी इंसुलिन के साथ एसोसिएटेड होते हैं और कभी लीवर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। इसीलिए हमें फास्टिंग, OGTT और HbA1c, ये तीनों पैरामीटर को हमेशा साथ लेके चलना है। किसी भी एक पैरामीटर के बेसिस पे आप डायग्नोसिस नहीं कर सकते, ठीक है। Now, before starting the pathophysiology and the relevance, I want to introduce to all of you who are associated with anti-diabetic practices या फिर जिनको इंटरेस्ट है डायबिटीज के पैथोफिजियोलॉजिकल और एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज के बारे में। They must know this person who is known as Dr. Mohan. He is an founder of Dr. Mohan's Diabetes Specialty Clinic. Why I am talking about him? Because इंडिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो डायबिटीज से रिलेटेड नंबर्स के बारे में बात करते हैं। आपने बहुत बहुत सुना होगा कि डायबिटीज जो है ये इस टाइम पे इंडिया में सबसे ज्यादा है, या इंडिया जो है वो डायबिटिक कैपिटल बन चुका है। बट व्हेन यू आर गोइंग टू सर्च अबाउट द नंबर्स कि इंडिया की हुई स्टडीज में कितने नंबर्स हैं डायबिटीज के बारे में या प्री डायबिटीज के बारे में, very few researches have been done, and most of are done by Dr. V. Mohan. He is also Padma Shri for his contribution towards diabetes. And those who are interested in the epidemiological numbers and about the incidences, जो कि हम लोग जब आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं उसमें टेंडेंसी बहुत कम होती है कि हम लोग किसी भी डिसऑर्डर के इंसिडेंस के बारे में बात करें कि वो कितना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज हम लोग मेद धातु दुष्टि के बारे में बात करेंगे, तो अगर आप कोई भी डेटा ढूंढने चाहते हैं कि मेद धातु से रिलेटेड जो दुष्टि है वो कितने लोगों में मिलती है, या प्री डायबिटिक या जो से रिलेटेड एसोसिएटेड आयुर्वेदिक कंडीशंस हैं वो कितने मिलते हैं, यू विल फाइंड nil researches on those parts. So that's why I am indicating his name.
जो कोई भी इंटरेस्टेड है डायबिटीज की एपिडेमियोलॉजी में, दे मस्ट नो डॉक्टर वी मोहन, और आपको उनके रिसर्चेस पढ़ने चाहिए। आगे के जो रेफरेंसेस है मेरे, वो मोस्ट ऑफ उनके ही रिसर्चेस से लिए हुए हैं। सो डॉक्टर वी मोहन, who is associated with the numbers of diabetes and pre-diabetes in India. Now let's discuss about the numbers. ये चार्ट आपने कई बार देखा होगा, अलग अलग जगहों पे आता है, एंड इट इज, क्यों यही चार्ट हर बार आपको मिलता है? एज आई हैव सेड कि देयर आर वेरी फ्यू नंबर्स वेयर द स्टडीज हैज बीन डन अकॉर्डिंग टू द नंबर्स। तो डायबिटीज के बारे में जो एक्सपेक्टेशंस हैं, 2017 में जिस टाइम पे काउंटिंग की गई थी, तब इंडिया सेकंड नंबर पे था, एंड द टोटल नंबर ऑफ people who are suffering with reported diabetes were 72.9 million, and the expected number for 2045 is 134.3 million, which is almost the double of the number. और आगे आने वाले समय में इंडिया जो है वो चाइना को पीछे छोड़ देगा, एंड यू कैन सी द गैप कि कितने ज्यादा मार्जिन के साथ इंडिया आगे हो जाएगा चाइना से। So this is a scaring picture. Again, I want to tell all of you that ये government के data हैं, and as we know that whenever we are going to talk about the governmental data, they always try to make it more comfortable. So real picture जो है वो इससे कहीं ज़्यादा scary है. More people are associated with the diabetes. और जहाँ पे हम लोग डायबिटीज के बारे में बात करते हैं, व्हेन यू कैन इमेजिन कि इतने कम रिसर्चेस हुए, वहां पे जो प्री डायबिटीज से रिलेटेड डेटा है वो और भी ज्यादा स्कैरी है। जहाँ पे जो ग्लोबल प्रिवेलेंस है इस डिजीज का वो 7.3% है। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस IGT जो है, इसका ग्लोबल प्रिवेलेंस जो है वो 7.3 है। व्हाइल व्हेन वी आर गोइंग टू सी अबाउट द इंडियन सिनेरियो, इट इज ऑलमोस्ट 40%। तो अगर 14% है प्री डायबिटीज का, जो कि ऑलमोस्ट डबल है ग्लोबल प्रेवलेंस से, यू कैन इमेजिन दैट हाउ मच great health burden it is going to cause. So according to this data, every 6th Indian is a pre-diabetic. Every 6th Indian is pre-diabetic, and the prevalence rate is almost double when compared to the global prevalence. ये एक स्टडी है जो रामचंद्रन एट ऑल द्वारा की गई थी अलग अलग सिटीज में। डायबिटिक, प्री डायबिटिक या जिसको हम लोग इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कहते हैं, इसके इंसिडेंस के बारे में। सो यू कैन सी हियर कि जहां पे प्रिवलेंस की बात की गई है, इट इज ऑलमोस्ट 13.9, 13.8 एंड 14 इन द टोटल इन मेल एंड फीमेल। And when we talk about the IGT, it would be 14.4, 14.6 and 14.3. तो डायबिटीज और प्री डायबिटीज को लेकर के जो इंडिया का सिनेरियो है और अदर कंट्रीज का सिनेरियो है, इट इज वेरी मच डिफरेंट। दिस स्टडी टॉक अबाउट द स्टेट वाइज। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड और चंडीगढ़ में जो इंसिडेंसेस हैं वो यंग एडल्ट्स पे किए गए हैं, और वहां पे आप देख सकते हैं कि जो नंबर्स हैं they are quite scary. So 62.4 million, और ये जो स्टडी हुई थी ये 2011 की है, ऑलमोस्ट 10 years बिफोर। तो जो प्रोजेक्शंस था उस टाइम के लिए वो 62.4 मिलियन है, विच आर रिपोर्टेड केसेस। वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। जब हम लोग डायबिटीज या प्री डायबिटीज के बारे में बात करते हैं, तो जो मेन डिफरेंस आता है वो रिपोर्टेड केस का है। डायबिटिक केसेस आर मोर प्रोन to get reported in the hospitals or OPDs, while pre-diabetes is only associated with the accidental findings. आप अपने क्लिनिक में भी देखते होंगे, कोई प्री डायबिटिक पेशेंट खुद से आपके पास नहीं आता ये बोलने की मुझे ये प्रॉब्लम लग रही है या मुझे लगता है कि मुझे प्री डायबिटीज हो गया एंड व्हाट आई हैव टू डू। सो प्री डायबिटीज इज यूजुअली एसोसिएटेड विद द एक्सीडेंटल फाइंडिंग्स। जब किसी और ऑपरेटिव के लिए प्लान कर रहे हैं या किसी और डिजीज का फॉलोअप ले रहे हैं, एट दैट टाइम दे कम टू नो कि हाँ उनके जो शुगर लेवल्स हैं दे आर अल्टर्ड और देयर इज अ ग्लूकोज टॉलरेंस इन द बॉडी। सो दीज आर द डेटा व्हिच आर एसोसिएटेड विद डायबिटीज। Now we will talk about today's scenario.
आज के टाइम में जिस टाइम कोविड-19 चारों तरफ है, उस टाइम पे प्री डायबिटीज जो है वो और ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है. व्हाई? बिकॉज इट हैव मेनी सिमिलैरिटीज ऑन द पैथोफिजियोलॉजिकल लेवल. यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ओबेस पर्सन है. जिस टाइम पे डायबिटीज होता है उस टाइम पे इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो उसका बेसिक पैरामीटर है. वहीं कोविड-19 में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट होता है. क्रोनिक एज वी नो कि डायबिटीज जो है वो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन बहुत स्लो ग्रेड होता है बट कंटिन्यूअस होता है. In COVID-19, the inflammatory state starts very fast, very acutely, but it is going to be sustained. जितने दिनों तक पेशेंट में इन्फेक्शन रहता है, ये इन्फ्लेमेटरी स्टेट उतने ही तेजी से बढ़ता जाता है, भले कि पेशेंट में सिम्टम्स आपको कम या ज्यादा मिलते जाए. एंडोथेलियल डिसफंक्शंस and heart failure, myocarditis are the few to name which are associated with the resemblance of diabetes and COVID-19. इसके अलावा जो ये इन्फ्लेमेटरी स्टेट होती है जो डायबिटीज में स्लो ऑनसेट पे होती है और कोविड-19 में एक्यूट ऑनसेट पे होती है, दे आर वेरी मच सिमिलर. सो जितने भी हम लोग के बॉडी के इन्फ्लेमेटरी पैरामीटर्स हैं, फॉर एग्जांपल सी रिएक्टिव प्रोटीन और टिश्यू नेक्रोटिंग फैक्टर, cytokines, interleukins, they are going to be altered और वो बढ़े हुए नंबर में रहते हैं. बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, ये जो इन्फ्लेमेशन का पैथोलॉजी होता है इसके कारण से पेशेंट के बॉडी में कोएगुलेटिव जो सीक्वेंसेस होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं. इसीलिए हम लोग देखते हैं कि अभी के टाइम में आपने सभी स्टडीज में पढ़ा होगा कि जिस टाइम पे पेशेंट को कोविड से वो रिकवर हो रहा होता है या कोविड का ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद उसको डिफरेंट इस्केमिक या फिर स्ट्रोक के केसेस होते हैं विच इज एसोसिएटेड विद द कोएगुलेशन. द सेम थिंग हैपेंस इन डायबिटीज. डायबिटीज एक्चुअली में जो जिसके डायबिटीज के कारण जो डेथ होता है उससे बेसिक जो कॉजेज होते हैं वो यूजुअली थ्रोम्बोएम्बोलिक या फिर इस्केमिक इवेंट्स होते हैं. सो these two things whenever they are going to be associated they would be aggravated. तो जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनमें अभी केमिकल डायबिटीज या जिसको हम लोग फ्रैंक डायबिटीज बोलते हैं ये पूरा अपीयर नहीं होता है, ऐसे केसेस में जब कोविड-19 पेशेंट को इन्फेक्शन होता है इट इज गोइंग टू बी अपीयर्ड एज अ फुल फ्लेज और फ्रैंक डायबिटीज. सो प्री डायबिटीज एंड टाइप, दिस इज अ स्टडी जिसका मैंने आगे रेफरेंस दिया है. सो प्री डायबिटीज एंड टाइप 2 जो डायबिटीज है ये दोनों की जो पैथोफिजियोलॉजी है ये कोविड-19 से बहुत ज्यादा रिजेंबल करती है. एंड इट इज द अंडरलाइंग मैकेनिज्म इज गोइंग टू बी सेम, दैट इज chronic low grade inflammation, impaired innate immunity, poor adaptive immune response to infection and pro-coagulative state. ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये कोविड-19 के सिनेरियो को और ज्यादा डिफिकल्ट बनाते हैं. So those people who are pre-diabetic, they are more prone to develop complications of COVID-19. जितने भी complications हैं. So while pre-diabetic and diabetic patients are on the same grade to the get infection, infection का रेट जो होता है वो दोनों में सेम होता है, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप करने का रेट होता है वो प्री डायबिटिक या डायबिटिक पेशेंट्स में ज्यादा होता है. इसीलिए आज के टाइम में प्री डायबिटिक के लिए प्रॉम्प्ट अलर्ट या उसे पहले डायग्नोस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. दीज आर द रेफरेंसेस इफ यू वांट टू गो विद द स्टडी. Now we will discuss about the pathophysiological things. As all of you are must be aware with the diabetes. So जो risk factor है, they are quite similar with the diabetes. Family history, maternal या paternal दोनों में से किसी एक में भी अगर family history है diabetes की, तो those people are going to be prone towards pre-diabetes. अगर कोई cardiovascular event हो चुका है patient में, अगर patient overweight है, लाइफस्टाइल सेडेंट्री है या नॉन वाइट एंसेस्ट्री है. नॉन वाइट एंसेस्ट्री का मतलब कॉसेशियंस, लाइक जो एशियन पॉपुलेशन है, खासतौर से सेंट्रल एशियन पॉपुलेशन जो होती है, दे आर मोर प्रोन टू डेवलप द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ प्री डायबिटीज. इफ पेशेंट इज हैविंग हाइपरटेंशन, दैट इज
पेशेंट में किसी न किसी तरीके से एथेरोस्क्लेरोसिस का जो सीक्वेंस है वो स्टार्ट हो चुका है। एंड डिस्लिपिडीमिया, पेशेंट में ट्राइग्लिसराइड का लेवल अल्टर्ड आना, अगर पेशेंट को ऑलरेडी गेस्टेशनल डायबिटीज है या जो फीमेल है उसने मोर देन 4 kg का बेबी अगर डिलीवर किया है, तो अगर पेशेंट को पीसीओएस हो चुका है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द स्ट्रेस अवेलेबिलिटी। पेशेंट बहुत ज्यादा अगर स्ट्रेस में रहता है तो भी वो प्री डायबिटीज के लिए प्रोन होगा। दीज आर द मोस्ट सिमिलर पार्ट विद द डायबिटीज, क्योंकि निदान जो होगा वो हमेशा सिमिलर होगा, आइदर इट इज इन द प्री स्टेट और द फ्रैंक डिजीज। सो दोनों में जो रिस्क फैक्टर है दे आर सिमिलर। Here I have taken this picture for you, which is very much beautifully explained by Davidson. ये डेविडसन की इमेज है जहाँ पे इंसुलिन के बारे में बात की गई है। Wherever we are talking about diabetes type 2 or pre-diabetes, the basic culprit is always going to be insulin resistance. So insulin के functions क्या क्या है, अगर हमें वो ध्यान रहता है तो प्री डायबिटीज में आपको कौन कौन से पैरामीटर्स पे ध्यान देना है ये आपको पता होगा। सो ये जो इमेज आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं जिसमें एमिनो एसिड है, लैक्टेट पायरुवेट है, ग्लूकोज है, फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल है। इन फैक्टर्स के बारे में बात की गई है और उन पे इंसुलिन कैसे काम करता है ये दिखाया गया। सी द फर्स्ट पार्ट इज द अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड पे जो प्लस का साइन जहां जहां है, इसका मतलब इंसुलिन उन एक्शंस को बढ़ाता है, और जहां जहां माइनस का साइन है, इंसुलिन उन एक्शन को डिक्रीज करता है या उनको होने से रोकता है। तो अमाइनो एसिड्स में जो न्यू प्रोटीन का फॉर्मेशन है या ग्लूकोनियोजेनेसिस है या प्रोटियोलाइसिस है, इसको हमेशा इंसुलिन रोकता है। ठीक है, अमाइनो एसिड से प्रोटीन से अमाइनो एसिड का बनना हमेशा जो इंसुलिन है ये इनहिबिट करेगा। लैक्टेट पायरुवेट के ऑक्सीडेशन को हमेशा ये एनहांस करता है। ग्लूकोज के मसल्स में एंट्री को इंसुलिन हमेशा एनहांस करेगा। ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को एनहांस करता है, मींस ब्लड से ग्लूकोज को किसी भी टारगेट साइट के अंदर भेजना, ये इंसुलिन का बेसिक काम होता है। इन एनी केस इट इज नॉट गोइंग टू गेट अलाउड कि ग्लूकोज जो है वो ब्लड में यहाँ वहां वेंडर करे। अलॉन्ग विद दैट जो फ्री फैटी एसिड्स हैं, इनका ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्जन करके उनको मसल्स में रखना, इसके लिए इंसुलिन एनहांस करता है इस एक्शन को, जबकि वो फ्री फैटी एसिड्स को ब्लड में घूमने से इनहिबिट करता है, रोकता है। दीज आर द बेसिक एक्शंस ऑफ द इंसुलिन। तो जब कभी भी हम लोग प्री डायबिटीज के बारे में बात करते हैं या फ्री फैटी एसिड्स के बारे में बात करते हैं या फिर डिस्लिपिडीमिया के बारे में बात कर रहे हैं या मेदो व श्रोत सृष्टि के बारे में बात करते हैं, वी हैव टू रिमेंबर द एक्शंस ऑफ इंसुलिन। क्योंकि इंसुलिन का एक्टिविटी ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ये हर बार इसके एक्शन से पता चलेगा। नाउ इट इज समराइज्ड अबाउट द मेटाबॉलिक एक्शन। तो क्या क्या ये करता है, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कराता है, अपनी अपनी जगहों पे भेज देगा। सेल्स के अंदर फॉस्फोराइलेशन कराना, ग्लाइकोजन का बनना एंड ग्लाइकोलाइसिस के लिए, देन पेंटोज फॉस्फेट शंट को ये एनाबोलाइज कराता है, जबकि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होना ये हमेशा रोकता है। ट्राइग्लिसराइड्स की सिंथेसिस, फैटी लीवर्स का लीवर में, फैटी एसिड्स का लीवर में सिंथेसिस होना, इन एक्टिविटीज को ये एनहांस करता है। वहीं लाइपोलिसिस या जो फ्री फैटी एसिड्स है उनका ब्लड में घूमना, उनको रोम करना, इसको ये रोकता है। कीटोन बॉडीज का बनना रोकता है एंड अमीनो एसिड का जो ट्रांसपोर्ट है उसे ये एनहांस करता है। हियर वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि इंसुलिन को प्रॉपर काम करने के लिए हमेशा लीवर की जरूरत पड़ती है। While we are talking about a diabetic patient or pre-diabetic patient and we are trying to screen the pre-diabetic state in the patients, we have to remember importance of liver as well as the insulin. जितना इंसुलिन important है उतना ही लीवर, क्योंकि यहाँ प्रीवियस इमेज में देख सकते हैं
कि सारे जो एक्शंस हो रहे हैं उनका जो स्टार्टिंग पार्ट है वो लीवर है। तो इंसुलिन एक्टिवेट हो और उस एक्टिवेट इंसुलिन का जो फंक्शन है वो अपने एंड रिजल्ट तक पहुंचे, उसके लिए लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई वी टेक 2 सैंपल्स ऑफ पेशेंट्स, फास्टिंग एंड पीपी। फास्टिंग हम लोग जब भी पेशेंट का शुगर चेक करते हैं, इट इज इंडिकेटिंग अबाउट द लीवर फंक्शन। ग्लूकोज के लिए लीवर का रिस्पॉन्स कैसा है ये आपके फास्टिंग ब्लड शुगर से पता चलता है, और शुगर को लेके इंसुलिन का रिस्पॉन्स कैसा है ये आपके 2 आवर सैंपल, या जिसको हम लोग ओजीटीटी सैंपल बोलते हैं, या जिसको हम लोग पोस्ट प्रैंडियल सैंपल बोलते हैं, उससे पता चलता है। सो जितना इंपॉर्टेंट इंसुलिन है डायबिटीज के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट लीवर का एक्शन है। Now these are the features when a patient is going to develop the insulin resistance. तो अगर जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, मीन्स इंसुलिन काम करना कम कर देता है, या हमारी बॉडी की सेंसिटिविटी जो है वो इंसुलिन के लिए कम हो जाती है, तो क्या क्या होगा? ब्लड में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा। दिस पार्ट आर इंपॉर्टेंट व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द डायग्नोसिस। सो पेशेंट में हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाएगा, ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो सकता है, एचडीएल का लेवल पेशेंट में कम आ सकता है, सेंट्रल ओबेसिटी डेवलप हो सकती है, पेशेंट में डेवलप माइक्रोएल्ब्यूमिनेरिया, एंड जितने भी इंफ्लेमेटरी इंडिकेटर्स होंगे वो बढ़ जाएंगे। सो फाइब्रिनोजन इज गोइंग टू इंक्रीज, प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर इनहिबिटर 1, C reactive protein, plasma uric acid, they are going to be increased as the result of insulin resistance, and hence this pathogenesis takes place. So whenever there would be muscle insulin resistance, तो जितने सारे फंक्शन हम लोग ने पहले डिस्कस किए वो वहां पे अब काम करना कम कर देंगे। तो क्या होगा? लाइपोलाइसिस ज्यादा होगी, क्योंकि इंसुलिन जब तक प्रॉपर्ली एक्टिव था वो क्या कर रहा था? लिपिड के लाइसिस को रोक रहा था, है ना? सो विसरल फैट जो है वो, विसरल फैट के पास जो फैट रहता है उसको ये तोड़ तोड़ के ब्लड में भेजना शुरू करेगा। व्हेन दे आर गोइंग टू इंक्रीज द फ्री फैटी एसिड, इट विल इंक्रीज द एथेरोस्क्लेरोटिक इवेंट्स, है ना? इसके साथ ही क्या होगा? जब हाइपर इंसुलिनीमिया होगा तो बीटा सेल जो होती है वो कंपनसेट करना स्टार्ट करती है। These free fatty acids and hyperinsulinemia will lead towards the increased glucose level in the blood. ब्लड में ज्यादा रहेगा, भले कि वो सेल्स के अंदर एंट्री नहीं ले पाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण। और ये जो स्टेप है जहां पे हम लोगों ने देखा है कि इंक्रीज ग्लूकोज आउटपुट होता है, बीटा सेल डिकम्पनसेशन स्टार्ट हो जाएगा, एंड इंक्रीज ग्लूको न्यूजेनेसिस लीवर में स्टार्ट हो जाता है। यही स्टेप जो है वो प्री डायबिटीज कहलाता है। So when you consider any person about pre-diabetes, you have to think these things. You have to think about these things. That is, liver में पेशेंट के ग्लूकोनियोजेनेसिस ज्यादा हो रहा है, फ्री फैटी एसिड्स पेशेंट के ब्लड में ज्यादा आ रहे हैं, और बीटा सेल का डिकम्पनसेशन स्टार्ट हो चुका है। एंड आगे जब ये तब भी निदान सेवन अगर पेशेंट कंटिन्यू रखता है तो ऑब्वियसली आगे जाके इंसुलिन का सिक्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। नाउ इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू डायबिटीज। So this would be the pathophysiology of the pre-diabetes. यहाँ पे एक पार्ट है जिसपे एम्फेसिस देना चाहूंगी मैं, दैट इज स्ट्रेस। क्योंकि स्ट्रेस जो है ये एज अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर काम करता है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर का मतलब ये पैथोलॉजी पूरी चल रही होती है पीछे से कि पेशेंट ओबेज होता है, जेनेटिक उसका प्रीडिस्पोजिशन होता है, बट व्हेनेवर देयर विल बी स्ट्रेस, स्ट्रेस इन एनी फॉर्म, अगर पेशेंट किसी ऑपरेटिव में जा रहा है, पेशेंट प्रेग्नेंट है, अगर पेशेंट को कोई ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस हो रहा है, बिकॉज ऑफ एनीथिंग, द cortisol is going to be more active and it will lead towards central obesity and lipid level increase, and this leads towards hepatic gluconeogenesis. बॉडी जो है वो फ्लाइट मोड पे आ जाती है, and it will lead towards the more production of glucose, and these lead towards the insulin resistance. इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी होती है वो कम होती जाएगी, hence the patient is going to develop impaired glucose tolerance, that is known as prediabetes. Now this is the sequence. जितने भी हम लोग रिस्क फैक्टर डिस्कस किए, ओबेसिटी है, आगे इसका डिस्क्रिप्शन है वेस्ट हिप रेशियो का,
हिस्ट्री ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज या फैमिली हिस्ट्री होती है, जो सेकेंड स्टेज है जहां पे पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड शुगर हाई रहने लगेगा, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा और हाइपरलिपिडीमिया होगा. So this state would be known as insulin resistance syndrome or impaired glucose tolerance, and that is known as prediabetes. Okay, so I think this part is sufficient for the understanding of different parameters जो हम लोग clinic में use करते हैं diagnosis के लिए. Now let's discuss about the Ayurvedic perspective. When we discuss the symptoms कि patient में आपको क्या चीजें दिखने वाली हैं, तो हमने देखा है कि जो डायबिटीज है इट इज वेरी मच पैरेलल विद द प्रमेह. तो जो प्री डायबिटीज है इट इज नॉट द प्रमेह, बट प्रमेह की भी जो चतुर्थ क्रियाकाल है उसका स्टार्टिंग पार्ट होता है जहां पर दोष दूष्य समूर्छना अभी तक हुई नहीं है ना. एक बार दोष दूष्य समूर्छना बस्ती में हो जाएगी तो इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रमेह. तो जो चतुर्थ क्रियाकाल है या स्थान संशय वाला जो फेज है वहां पर मेदो व श्रोतस दृष्टि हो तो चुकी है, बट ये अभी तक लोकेट नहीं हुई है किसी एक जगह पे जाके, दैट इज बेसिकली बस्ती, वहां पर इसका लोकलाइजेशन नहीं हुआ है. दैट्स व्हाई इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रमेह. पूरा फुल फ्लेज जो डिजीज होगा वहां पर स्थान संशय के बाद का जो स्टेज होता है वो कंसिडर होता है. सो व्हाइल वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्री डायबिटीज, प्रमेह पूर्व रूप जो आयुर्वेद ने बताए हैं गए हैं, दे आर मोर एसोसिएटेड विद दिस डिसऑर्डर एंड दिस इज एसोसिएटेड विद द मेदो व श्रोतस दृष्टि है, मेद धातु दृष्टि. जहां कहीं पर भी हम लोग डायबिटीज का संप्राप्ति देखते हैं वहां पे दो चीजें आचार्य ने बहुत ही प्रीडोमिनेंटली बताई हैं. दैट इज, एक तो बहुत ज्यादा कफ का दृष्टि होना अति प्रमाण में, और दूसरा बहुत सारा बह्व और अबद्ध प्रकार के मेद की दृष्टि होना. सो दिस इज द कार्डिनल पार्ट. पेशेंट में जब भी किसी भी जो हम लोगों ने जितने कॉजेस डिस्कस किए या आचार्यों ने जब मेदो व श्रोतस दृष्टि के जो कारण बताए हैं कि अव्यायामात, दिवास्वप्नात्, मिद्यानाम च अतिभक्षणात्, वारुणस्य अतिसेवनात्, यहाँ जब उन्होंने इसके लिए बताया है प्रमेह की संप्राप्ति के लिए जो निदान बताए हैं कि आस्य सुखम स्वप्न सुखम या दधीनी ग्राम्य और ग्राम्य औदक अनुप्रसपयांसी नवन्नपान, ये सारी चीजें गुड़ वैकृत, इनका जब वो कंजप्शन स्टार्ट करता है या इन निदानों के प्रति वो प्रोन होता है, तो बेसिकली दो चीजों की दृष्टि हो रही है जो स्थान संशय के पहले की स्टेज की, दैट इज वन इज कफ एंड वन इज मेद. दोनों ही कंडीशन में पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत जो है ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है. सो दीज टू थिंग्स आर गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद द symptoms which you're going to observe in your clinic. तो पेशेंट में आपको क्या क्या दिखता है, जिसे देख करके आपको ये समझना है कि इस पेशेंट में मेद धातु की दृष्टि हो चुकी है या मेदो व श्रोतस दृष्ट है, या जिसको हम लोग प्री डायबिटीज के साथ कोरिलेट कर सकते हैं. सो दीज वुड बी स्थौल्य, ग्रंथि होगी, पेशेंट को टेंडेंसी होगी. सी ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैव टेंडेंसी. आप देखो कि आपके पास जो ओबेसिटी के पेशेंट आते हैं या प्री डायबिटीज के पेशेंट आएंगे, उनमें ये लक्षण कम ज्यादा होते रहते हैं. पेशेंट कई बार ट्राई करता है कि वो रिवर्स कर ले, बट दीज आर जिस तरह के रीनल स्टोन में होता है, दे डू हैव द टेंडेंसी टू डेवलप अगेन एंड अगेन. सो अगेन दीज सिम्टम्स आर गोइंग टू हैव द टेंडेंसी. पेशेंट को स्थौल्य का, ग्रंथि का, अतिस्वेद, आलस्य, दौर्गंध्य, अतिशुदा, अति पिपासा, साद, अर्बुद और वृद्धि, इन लक्षणों की टेंडेंसी होती है. व्हाई इट इज टेंडेंसी? बिकॉज जितना जब भी पेशेंट निदान परिवर्तन करना स्टार्ट करता है, दे कैन गेट रिड्यूस्ड अप टू अ लेवल, बट अगेन ये बढ़ जाते हैं. तो जहाँ पे ग्रंथि कहा है आचार्य ने, यहाँ पे ग्रंथि से मतलब है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सिस्ट जो होते हैं इनका बॉडी में होना. आपको कई बार जो मेदज पेशेंट्स होते हैं वो आपको बताएंगे कि कई बार मुझे ऐसा एक ट्यूमर जैसा फील होता है या स्वेलिंग जैसी फील होती है, जो इसको कि मूव कर सकते हैं आप हाथ से, स्किन के ऊपर से आप उसे पकड़ के मूव कर सकते हैं, एंड स्टिल इट इज गोइंग टू डिसअपियर आफ्टर सम टाइम. अलोंग विद दैट दे हैव द टेंडेंसी टू डेवलप अर्बुद, या ट्यूमर बनने के उनको टेंडेंसी होती है. बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन, वृद्धि होने के लक्षण होते हैं. एंड अलोंग विद दैट पेशेंट को अतिस्वेद, आलस्य, दौर्गंध्य, अतिशुदा, ये जो होता है इनको आपको पेशेंट में असेस करना है विद द प्रीवियस सिम्टम्स.
ठीक है, किसी को अगर हमेशा से ही कोई कोई होता है जो हमेशा से उसको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है ना, बट उनमें नहीं, पहले कम स्वेटिंग होती थी और अब ज्यादा होती है, पहले आलस्य का प्रमाण इतना नहीं था, पहले इतनी भूख नहीं लगती थी और अब लग रही है। these symptoms, just the development of the symptoms are associated with the मेद धातु दृष्टि. So the key part is that to remember कि पहले से अब का बढ़ जाना या इस टेंडेंसी का इंक्रीज होना is associated with the दृष्टि. So while Acharya has talked about the मेद धातु दृष्टि, he has mentioned कि जो प्रमेह के पूर्व रूप है और जो अष्टोनिंदितीय प्रकार बताए हैं वो मेद के दृष्टि के कारण होते हैं, के कारण से होते हैं. अगेन आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि ग्रंथि का होना, वृद्धि का, गलगंड, अर्बुद, मेदज ओष्ठ प्रकोप का होना, मधुमेह या स्थौल्य, स्वेद की अति प्रवृत्ति होना, ये लक्षण जो है वो मेद धातु दृष्टि के बताए गए हैं. तो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट दीज सिम्टम्स या ये सिम्टम्स जब भी आपको पेशेंट में दिखते हैं, यू हैव टू थिंक अबाउट मेद धातु दृष्टि एंड प्री डायबिटीज. ये कुछ लक्षण है जो आपको क्लिनिक में देखने हैं पेशेंट को, जिसमें अति स्थौल्य के लिए आचार्य चरक ने बताया है कि मेद और मांस की अतिवृद्धि होना, जब भी पेशेंट मूव करता है, चल, स्फिक, उदर, स्तन, इन पार्ट्स का मूव करना, यथा उपचय, उत्साह, नरो अति स्थूल उच्यते, इस प्रकार के लोग जो होंगे वो अति स्थूल कहलाते हैं. While we are talking about the Ayurveda, what we have to remember कि जो पैरामीटर्स मॉडर्न में बताए हुए हैं कि पेशेंट का BMI जो है वो या वेस्ट एंड हिप रेशियो है वो अल्टर होना चाहिए. These things should be associated with that particular चिकित्सीय पुरुष. हर व्यक्ति में उत्साह का लेवल अलग अलग होगा. एज वी नो कि वातज पित्तज कफज या जो धातु सारता के अनुसार हर पेशेंट में उत्साह का लेवल अलग अलग होगा, है ना. तो उस पर्टिकुलर पर्सन में ये जो उत्साह का लेवल है ये कितना कम हुआ है पहले से, ओके, या मेद और मांस जो है पेशेंट का वो पहले से कितना था, दिस थिंग हमेशा, ये चीज जो है वो हमेशा हम लोग को असेस करनी होती है. इसके अलावा जो पूर्व रूप बताए हैं दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जिसका कि यस ये हम लोग अभी आगे चार्ट में डिस्कस करेंगे, हाउ वी हैव टू असेस. दिस इज द थिंग हाउ यू आर गोइंग टू सी द पर्सन हु इज प्री डायबिटिक. जो काम जिस एक्टिव स्टेट में रह के किया जा सकता है उससे वन स्टेप पीछे जाकर के यह व्यक्ति काम करता है. जैसे आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि इस व्यक्ति को हमेशा टेंडेंसी होती है किस चीज की, गमनात् स्थानम, स्थान आसनम इक्षति, जो काम चल के किया जा सकता है वो एक जगह पे वो रह के करेगा, जो काम एक जगह पे खड़े होके किया जा सकता है उसके लिए वो आसन का इच्छुक होगा, जो काम बैठ के किया जा सकता है वो उसे लेट के करेगा, और शय्या शयनात् स्वप्नम इच्छितम, और जो काम लेट के किया जा सकता है उसके लिए वो सीधा निद्रा देवी के शरण में जाता है. सो दिस इज द इक्षति, दिस इज द टेंडेंसी. Those people who are having this tendency, they are going to be a pre-diabetic person. So this thing have to be remembered. आचार्य चरक ने भी वही कहा है कि जो लोग किसी भी तरह की एक्टिविटी से द्वेष रखते हैं, चाहे वो स्नान करना हो या वो चक्रमण करना हो, ऐसे सभी लोगों का शरीर जो है वो कैसा हो जाता है, वैसा ही जैसे जो पक्षी है वो जब अपने नेस्ट में एक बार अंडे दे देता है तो उसके प्रति उसका जैसा ये रहता है, प्रेम रहता है, वैसा ही उस व्यक्ति के शरीर के लिए प्रमेह का प्रेम हो जाता है. अर्थात उस व्यक्ति को प्रमेह कभी भी छोड़ता नहीं, हमेशा उस व्यक्ति को प्रमेह हो ही जाता है. सो टेंडेंसी ऑफ प्री डायबिटिक पर्सन कैन बी आइडेंटिफाइड विद दिस पिक्चर. जो काम जैसे एक्टिव स्टेट में रह के किया जा सकता है उससे वो वन स्टेप बैक जाता है. एंड दिस आइडेंटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट विच इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ द डायबिटीज, प्री डायबिटीज. सो प्री डायबिटीज के लिए हम लोग ने ये पहले डिस्कस किया है. आई होप ये आप सभी को ये चार्ट याद होगा. सो दीज आर द पैरामीटर विच वी यूज इन दिस चार्ट. दिस इज द असेसमेंट क्राइटेरिया फॉर प्री डायबिटीज. ये वो क्राइटेरिया है जिससे हम लोग प्री डायबिटीज को असेस कर सकते हैं अपने पेशेंट में, विच आर द पैथोलॉजिकल परसेंटेज एंड विच आर द फिजियोलॉजिकल. सो अगर हम लोग फास्टिंग ग्लूकोज की बात करते हैं पेशेंट में तो ये लेस देन 100 होना चाहिए इन द नॉर्मल, एंड इन द पैथोफिजियोलॉजिकल अल्ट्रेशन 126 से बिलो एंड 100 से ज्यादा होगा.
सेम थिंग फॉर द पोस्ट प्रैंडियल, 140 से अगर ये ज्यादा हो जाता है इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ पैथोफिजियोलॉजिकल, लेकिन अगर ये 200 से ज्यादा हो जाता है तो इट वुड बी डायग्नोस्ड केस ऑफ डायबिटीज। तो अगर 200 से कम है, 140 से ज्यादा और 200 से कम। द सेम थिंग फॉर द ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, ये 5.7 से लेकर 6.4। ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है, जो उनका नॉर्मल रेंज है, उससे ज्यादा हो जाना। सो इफ दे आर गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम 150 mg पर DL। BMI जो पेशेंट का है वो अगर 25 से ज्यादा जाता है इट विल इंडिकेट टुवर्ड्स द ओबेसिटी। तो वन वेरी मच इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द प्री डायबिटिक और इंसुलिन रेजिस्टेंट पीपल इज वेस्ट हिप रेशियो। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक पैरामीटर है जो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली डिपेंड करता है उस चिकित्सीय पुरुष पे। ठीक है, यहाँ पर हम जो पैरामीटर निकालते हैं वो किसी स्टैंडर्ड पैरामीटर से कंपेयर नहीं करते। उस पर्टिकुलर पेशेंट में जो वेस्ट और हिप का रेशियो है दैट इज गोइंग टू बी असेस्ड। दैट इज वेरी मच यूजफुल। ये कैसे हम लोग करते हैं, इसमें क्या करना होता है, वेस्ट जो है जहाँ पे हम लोग मेजर करते हैं इट वुड बी कंसिडर्ड एज द पार्ट विच इज जस्ट बिलो द लोएस्ट रिब। ठीक है, जो लोएस्ट रिब का पार्ट होता है वहां से हम लोग फर्स्ट मेजरमेंट लेते हैं, जो कि यूजुअली नेवल पार्ट के ऊपर आता है ना। नाभि के जस्ट ऊपर का जो पार्ट है उसे हम लोग वेस्ट कंसिडर करके वहां का मेजरमेंट लेते हैं। और हिप का जो मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट होता है, सेकेंड मेजरमेंट हिप का वहां से लेते हैं। तो वेस्ट का मेजरमेंट उस पर्सन का और उसके हिप का रेशियो, ये दोनों जब निकालेंगे तो ये असेस किया जाएगा उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। ठीक है, तो वेस्ट हिप रेशियो जो है इट इज एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो ये ज्यादा यूजफुल होता है BMI की भी अपेक्षा जब हम लोग प्री डायबिटीज को असेस कर रहे होते हैं। तो अगर मेल में मोर देन 0.9 से है और अगर फीमेल में 0.85 से ज्यादा है तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज पैथोलॉजिकल। लेकिन हम लोग क्लिनिक में जब इसको यूज करते हैं तो मेल्स में अगर वेस्ट हिप रेशियो जो है वो मोर देन 1 हो रहा है और फीमेल में वेस्ट हिप रेशियो मोर देन 0.9 हो रहा है तो हम लोग इसे ज्यादा पैथोलॉजिकल लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा ESR के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया कि डायबिटीज का जो पैथोजेनेसिस है विच इज ऑल्सो द पैथोलॉजिकल पार्ट ऑफ द प्री डायबिटीज, यहाँ पे सभी इंफ्लेमेटरी मार्कर्स जो होते हैं वो पढ़े हुए होंगे। तो ESR के लिए इफ इट इज गोइंग टू बी मोर देन 20 you have to consider that this patient is undergoing with some sort of chronic inflammation along with C-reactive protein। नॉर्मल रेंज जो है C-reactive प्रोटीन की वो लेस देन 1 होनी चाहिए। कभी कभी फीवर है आ रहा है या बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशंस है तो इट कैन बी इन द रेंज ऑफ 2, लेकिन whenever it is going to be more than 3 mg per DL it should always consider about the inflammation। along with that सीरम इंसुलिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीरम इंसुलिन हम लोग जब पेशेंट में असेस करते हैं तो हमेशा फास्टिंग लेवल पे चेक करेंगे। और ये जब भी मोर देन 25 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से ज्यादा आ रहा है इट मींस पेशेंट इज गोइंग अंडर द हाइपर इंसुलिनीमिया। सो दीज आर द लैबोरेटरी पैरामीटर विच वी यूजुअली यूज इन डायग्नोसिस ऑफ प्री डायबिटीज। इसके अलावा जो क्लिनिकल पार्ट है जिसमें कि दौर्गंध्य है, दौर्गंध्य यूजुअली अतिस्वेद के कारण पेशेंट को होता है, लेकिन द इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट कि पेशेंट को पहले ये दौर्गंध्य नहीं था और अब डेवलप हुआ है। द सेम गोज फॉर आलस्य। पेशेंट जिस एक्टिव स्टेट में रहता है उससे 1 स्टेप बिहाइंड जब जाने का ट्राई करने लगता है इट वुड बी नोन एज द आलस्य। दौर्बल्य का उत्पन्न होना विच इज वेरी मच कॉमन विद द लाइपोलाइसिस एंड इंक्रीज्ड शुगर लेवल इन द ब्लड। हस्तपात चिक्कणता का होना, अतिस्वेद का होना, निद्रा का पहले से ज्यादा होना, हर समय तंद्रा को फील करना जो कि पहले नहीं थी, पहले की अपेक्षा ज्यादा भूख का लगना, ज्यादा प्यास का लगना, उत्साह की हानि हो जाना, पहले की अपेक्षा पेशेंट को कृच्छ व्यवयता का होना, स्ट्रेस लेवल का बढ़ा हुआ दिखना, ग्रंथियां पहले शरीर में नहीं थी, अर्बुद नहीं था और वृद्धि भी नहीं था लेकिन अब होने लगा है, नाउ दे हैव द टेंडेंसी। So these things indicates towards the pathophysiology of pre-diabetes। तो अगर ये आयुर्वेदिक और मॉडर्न के जो पैरामीटर्स हैं इनका कॉम्प्लेक्स आपको पेशेंट में मिलता है, यू हैव टू
diagnose that person as a pre-diabetic. तो यहाँ पर एक पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजुअली मॉडर्न में जो हम लोग यूज करते हैं क्राइटेरिया, दे आर एसोसिएटेड विद द काउंटेबल थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल फास्टिंग ब्लड शुगर, या उसका टॉलरेंस कितना है, या पोस्ट प्रैंडियल टॉलरेंस कितना है. दीज थिंग्स आर एसोसिएटेड विद द नंबर, और ये हर पर्सन टू पर्सन एक्चुअल में वेरी करता है. वेन एवर दीज रीडिंग्स आर बीन टेकन, आपको पता है कि ये ऑन एन एवरेज होते हैं विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना. तो ये हमेशा हर पर्सन में सेम नहीं रहती. शुगर के लिए एक ही दो अलग अलग लोगों का बॉडी का रिस्पॉन्स हमेशा अलग अलग होगा. सो वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग दैट these countable pictures are not the definite part. बहुत सारे पेशेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनका शुगर लेवल अभी भी नॉर्मल रहता है, who haven't shown the features of ग्लूकोज टॉलरेंस, लेकिन उनको दौर्गंध या अतिस्वेद ये लक्षण पेशेंट में पहले से ज्यादा होते हैं, एंड these people are going to lead towards the development of pre-diabetes. Okay, so there is a term which is named as clinical inertia while we discuss about the pre-diabetes. आज के टाइम में कोविड सिनेरियो में जिस टाइम पे हम लोग इतने सारे लोगों को देख रहे हैं कि उनका जो प्री डायबिटिक या हिडन डायबिटीज था वो फ्रैंक डायबिटीज में कन्वर्ट हुआ है, और दोज पीपल हु हैव डायबिटीज दे हैव मोर कॉम्प्लिकेशंस. दिस सिनेरियो मेक्स वेरी मच क्लियर इंडिकेशन टुवर्ड्स द क्लिनिकल इनर्शिया. ये एक स्टडी हुई थी, कुंती एट ऑल ने किया हुआ है 2017 में. यूजुअली डायबिटीज को लेकर के या प्री डायबिटिक अप्रोच को लेकर के जो एक नॉर्मल कॉन्शियस रहता है, इट सेज कि मोस्ट ऑफ टाइम ये पेशेंट की तरफ से मिस्टेक होती है कि वो मेजर्स नहीं लेना चाहता, या फिर वो पेशेंट जो है वो प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करता, या वो इनएक्टिव रहता है. बट एक्चुअल में जब ये स्टडी की गई, जहाँ पे पेशेंट को जो मेजरमेंट्स दिए जाते हैं, जो मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, उसका इफेक्टिवनेस अगर देखा जाता है तो मोस्ट ऑफ जगह पर लैकिंग पार्ट जो है दैट इज ऑलमोस्ट 50% जो फिजिशियंस के लेवल पे होता है. देयर आर एन नंबर ऑफ पोटेंशियल बैरियर्स व्हिच लीड टुवर्ड्स द क्लिनिकल इनर्शिया. तो कई बार पेशेंट को काउंसल कर पाना, उसे प्रॉपर स्ट्रेटजीज बता पाना, पेशेंट को डाइट चेंजेस, मेडिकल सप्लीमेंट्स ये जो होते हैं वो इम्प्रॉपर जाते हैं फिजिशियंस के साइड पे. सो दिस स्टडीज इंडिकेट टुवर्ड द क्लिनिकल इनर्शिया which lead more number of frank diabetes. अगर टाइमली इंटरवेंशन किया जाता है फिजिशियंस के तरफ से, तो जो प्री डायबिटिक स्टेट है उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं. जो डायबिटीज लोड है कंट्री का, दैट कुड बी reduced. Now, before starting the management, we have to remember the saying of आचार्य चरक कि उनके हिसाब से वो क्या चीज है जो पेशेंट में डिजीज का एक्सटेंट डिसाइड करती है, दैट इज एंड्योरेंस. आचार्य ने जहाँ पे अष्टनीति को डिस्क्राइब किया, वही उन्होंने बताया है कि सम मांस प्रमाणस्तु सम सहन अनुरह दृढ़ इंद्रिय विकारा नाम न बलेन अभिभूयते श्रुत पिपासा आतप सह शीत व्यायाम संसह संपक्ता समजर समांस चयोमत. ये कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रीटमेंट मोडालिटी के टारगेट के लिए देन द नंबर्स. उस पर्टिकुलर चिकित्सीय पुरुष में किसी भी कंडीशन को लेके एंड्योरेंस कितना है. okay? शुद्ध पिपासा आतप स जो कि एक्सटर्नल सारे ये हैं स्ट्रेस लेवल है, उसको पेशेंट कितने अच्छे से स्ट्रेच फुल्ली वो उसको एंड्योर कर पाता है, या जो इंटरनल स्ट्रेस होते हैं, है ना, दृढ़ इंद्रिय विकारा नाम, इंद्रियों का दृढ़ होना, विकार से न अभिभूत होना, ये जो सिम्टम्स है, दिस शुड बी द अल्टीमेट टारगेट ऑफ द रिवर्सल ऑफ प्री डायबिटिक. क्योंकि जहाँ पे हम लोग ओबेसिटी की बात करते हैं या मेद धातु दृष्टि की बात करते हैं, वहां पे उत्साह हानि, है ना, या जवोपरोध, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करते हैं. सो दिस शुड बी द टारगेट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्री डायबिटीज. नाउ लेट्स सी अबाउट द स्ट्रेटजीज. आपको कौन कौन सी स्ट्रेटजीज लेनी है प्री डायबिटिक पेशेंट के लिए. द फर्स्ट इज एसोसिएटेड विद द काउंसलिंग. सो काउंसलिंग में हमें पेशेंट को क्या क्या बताना है. सबसे पहले पेशेंट को ये बताना है कि कौन से पैथोलॉजिकल चेंजेस उसके अंदर हो रहे हैं, क्योंकि प्री डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो यूजुअली आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में आपको अप्रोच खुद से नहीं करते, है ना. आप किसी और डिजीज के लिए वो आपको अप्रोच करते हैं. एट दैट टाइम यू कम टू नो कि बाबा इस पेशेंट में ये चेंजेस हो चुके हैं, या फिर प्री डायबिटीज के लिए ये प्रोन है, या मेदोवशोथस हो चुका है.
तो यहाँ पर काउंसलिंग पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो पेशेंट के दिमाग को इसके लिए प्रिपेयर करेगा कि फ्यूचर में न हो, या जो अभी हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो रहे हैं, जो डैमेज हो रहा है, उसे रोका जा सके। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बताना है पेशेंट को कि उसके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं ग्लूकोज को लेके, कैसे जो टॉलरेंस है वो उसके बॉडी में डेवलप हो रहा है। फ्यूचर आउटकम्स पेशेंट को बताने हैं कि अगर इसको नेग्लेक्ट किया तो क्या क्या डेवलप होगा, उस पर्टिकुलर पेशेंट में क्या प्रोबेबल कॉज हो सकता है। जैसे हम लोगों ने रिस्क फैक्टर की लिस्ट देखी, इतनी सारी है, तो उसमें कौन सा पॉसिबल है वो उसे बताना जरूरी है ताकि वो उसे अवॉइड कर सके। दिनचर्या और ऋतुचर्या के बारे में काउंसलिंग करके उन्हें इंस्ट्रक्शंस देना, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड अलोंग विद दैट, ट्रीटमेंट की जो स्ट्रेटजीज उस पर्टिकुलर पेशेंट में हम लोग ले सकते हैं, दैट शुड बी टोल्ड। Counseling part is the most important part in all those disorders which are lifestyle disorders or inflammatory disorders. As we know कि ये disorders एक दिन में treat नहीं होते, they are going to take time and sometimes they are going to remain present for the lifetime. So whenever we are taking the patient for some sort of management, we have to make them prepare कि इस condition में आपको lifestyle changes, आपके जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, उनसे अवेयर है कि उनसे दूर रहना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या क्या करना है? सबसे पहले पेशेंट का गेस्चर टू नेक्स्ट लेवल ऑफ मूवमेंट कराना सबसे पहले जरूरी है। मींस वो पेशेंट जो अपना काम लेट के कर सकता है, वो उसको बैठ के करने के लिए बोलना है। जो बैठ के कर सकता है वो उसको खड़े होके करने के लिए कहना है, और जो वो खड़े होके कर सकता है वो उसको चल के करने के लिए कहना है। द सेम रिवर्सल आचार्य सुश्रुत हैज टोल्ड। So the gesture to next level of movement is very much important and the cardinal one in the lifestyle modification, है ना। इसी के लिए जो ये अभी आया था एक एड, वॉक वाइल टॉक, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था एंड इट वाज लाइफ चेंजिंग थिंग। अलोंग विद दैट, स्ट्रेस बस्टिंग जो एक्टिविटीज है पेशेंट में, वो हमेशा आपको इंड्यूस करानी है, वट एवर दे कुड बी, बिकॉज स्ट्रेस इज in this time of social media and the 24-hour news, we all are victim of self pity, है ना। हर किसी को ऐसा लगता है मेरे साथ तो बहुत गलत हो गया, ये तो बहुत ही बेकार चीज है। You have to make it sure that every patient who is prone towards diabetes, they should have the stress busting activities. Time management, they must be taught about the time management, because time management stress को कम करने का सबसे इजी वे है। Those who are bad with the time management, they always prone towards developing stress, और जिसके कारण से डायबिटीज का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो स्टार्ट होता है। पेशेंट का एक्टिव टाइम आपको बढ़ाना है। यू हैव टू काउंसल द पेशेंट अबाउट देयर शेड्यूल, और उसे कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं वो डिस्कस करना है। लंघन के सभी प्रकार जो आचार्य ने बताए हैं, उनमें से कौन सा उस पेशेंट के लिए बेटर है। से यहाँ पर प्री डायबिटीज जब हम लोग बात करते हैं, या जहाँ पे अभी स्थान संशय नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि अभी तक यहाँ पे वात का जो लीड है वो नहीं आया है ना। प्रमेह में जब हम लोग पेशेंट का ट्रीटमेंट लाइन देखते हैं, तो वहां आप देखोगे आचार्य ने हर जगह वात को हमेशा प्रिजर्व करके काम करने के लिए कहा है ना। इन स्पाइट ऑफ बीइंग द कफ प्रधान व्याधि, कहीं पर भी आप देखोगे पेशेंट आचार्य ने डायरेक्ट रुक्षण के लिए नहीं बताया है ना, क्योंकि जब एक बार प्रमेह की पैथोजेनेसिस बन जाती है, स्थान संशय हो जाता है, वहां से लीड जो होता है वो कफ से के बजाय वो वात ले लेता है। तो जैसे ही वात पिक्चर में आएगा, आपके जो ऑप्शंस होते हैं ट्रीटमेंट मोडालिटीज के, वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि अब आपको वात को क्रुद्ध न करते हुए सारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज ले रहे हैं। ये एडवांटेज हम लोग के पास प्री डायबिटीज में होता है। यू कैन चूज द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लंघन विच इज सुटेबल टू द पेशेंट। लंघन करते से हमेशा ये ध्यान रखना है कि लंघन का जो पर्पस होता है वो लाघव है। तो लंघन का ये मतलब नहीं है आप पेशेंट को बिल्कुल डाइट पे डाल दो या उसको स्टार्वेशन में डाल दो। whatever their feeding habits or lifestyle, you have to make a one step back, है ना। कोई अगर जो 3 टाइम कोई खाता है, आप उसे 2 टाइम्स कर सकते हो। जो उसका क्वांटिटी है, पोर्शन है, आप उसे ले कर सकते हो। जो उसका रुक्षण का या फिर उसके स्वेदन का, या फिर उस पेशेंट में डिफरेंट जो हीट के मेथड्स बताए गए हैं, उनका 1 स्टेप बैक आप प्रोसीजर स्टार्ट करा सकते हो। एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट इज द उद्वर्तन। उद्वर्तन आचार्य ने मेद धातु दृष्टि शुद्धि के लिए, ओबेसिटी में भी
दोनों जगहों पे उद्वर्तन का उल्लेख किया है, विच इज वेरी मच यूजफुल। और इसके लिए आपको पेशेंट को खुद ही करने के लिए इंस्ट्रक्ट करना है, उसे ट्रेन करना है, ताकि वो ये डेली बेसिस पे कर सके। इसके बाद डाइट चेंजेस आर एज वी नो कि क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो चेंज हम लोग करते हैं पेशेंट में वो है रस का, क्योंकि कफ है, मेद है, तो दोनों ही जो है वो पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान है। तो इनको कम करने के लिए हम लोग कटु, तिक्त और कषाय रस प्रधान डाइट पेशेंट को देते हैं। तो जब हम लोग कटु रस की बात करेंगे तो पेशेंट को आपको क्या क्या ऐड करने के लिए बोलना है जो कटु रस प्रधान द्रव्य है, जैसे कि अदरक है, काली मिर्च ऐड कर सकता है पेशेंट अपने डाइट में, विच इज स्टिल नॉट अ मेडिकेशन, जिसको हम लोग मेडिकेशन के फॉर्म में अभी भी यूज नहीं कर रहे हैं। या अगर पेशेंट विडंग यूज कर सकता है फॉर कटु थिंग्स। तिक्त रस को यूज करना है ना, बेटर टेस्ट, तो उसमें आप पेशेंट को हल्दी का यूज करना, विच इज वेरी मच इजी टू यूज, या नीम का यूज करना उसके डाइट में आप ऐड करा सकते हैं। कषाय द्रव्यों का प्रयोग है ना, जो जल का कर्षण करते हैं। तो ऐसे एस्ट्रोजन जो पदार्थ है जैसे मधु है, हरितकी है, हरितकी और विभितकी का यूज तो बहुत ही इजी है डाइट में करना। दोज थिंग्स कैन बी रिप्लेस्ड विद द अदर मधुर अम्ल और लवण थिंग्स। व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग को ऐड नहीं करना है सिर्फ, बल्कि जो मधुर अम्ल और लवण पदार्थ है उनको माइनस भी कराना है, उनको रिप्लेस कराना है। कटु, तिक्त, कषाय रस प्रधान द्रव्य अब पेशेंट को देना स्टार्ट करना है। ये नहीं करना है कि सिर्फ ऐड ही कर दिया, जितना वो पहले मधुर अम्ल लवण रस ले रहा था उसमें इनको ऐड नहीं करना है, बल्कि उनसे रिप्लेस करना है। ज्यादा करके कटु, तिक्त, कषाय आहार रहेगा, मधुर अम्ल लवण जो पहले था उसका पोषण आपको कम कराना है। The another thing is mindful eating, that is slow chewing of the food. पेशेंट को आपको ट्रेन करना है हाउ टू ईट द फूड। फूड जितने भी पेशेंट लेगा वो होलसम लेने चाहिए। होलसम मीन्स विद इट्स कवर, एंड अनप्रोसेस्ड फूड जितना हो सके वो कम से कम ले। होम मेड फूड ऑब्वियसली आप कितना भी अगर डीप फ्राइड भी खाते हो, इट इज होम कुक्ड, इट इज मच बेटर देन द आउटसाइड फूड, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ फूड होता है, जो क्वालिटी ऑफ ऑयल यूज करते हैं, इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, दे आर मच मोर बेटर एंड क्लीनर। एंड जो चीज बहुत ज्यादा अवॉइड करना है वो है सौहित्य, है ना। पेशेंट को एकदम जो टेंडेंसी होती है जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स की, या जिनको हम लोगों ने अभी देखा किन्नों को प्रमेह होता है, उनको सौहित्य की आदत होती है। हर चीज में उनको पूरी तृप्ति पूर्वक खाना चाहिए या तृप्ति पूर्वक सोना चाहिए, हर चीज में उनको सौहित्य चाहिए, वो आपको पेशेंट को अवॉइड कराना है। नाउ द वर्कआउट शेड्यूल, क्या क्या पेशेंट को हम लोग करा सकते हैं, जैसा हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि ऑलवेज मेक द पेशेंट वन स्टेप नेक्स्ट टू द गेस्चर। जो कुछ भी पेशेंट कर रहा है, पेशेंट बिल्कुल नहीं चलता, आप उसे वॉक कराना स्टार्ट करो। पेशेंट चलता है, यू कैन मेक देम जॉग, मेक देम रन, मेक देम स्विम, या अगर पेशेंट को है पॉसिबल तो वो साइकिलिंग, क्लाइंबिंग या फिर जुम्बा करना स्टार्ट करे। वट एवर देयर एक्टिविटी स्टेटस, यू हैव टू मेक देम वन स्टेप फर्दर। तो जिस टाइम हम लोग वर्कआउट शेड्यूल की बात करते हैं या उनमें जो कैलोरी एक्सेस हो जाता है उसको डिफिशिएट कराने की बात करते हैं, तो दो तरीके हैं, एक तो है एरोबिक्स और दूसरा है मसल स्ट्रेंथनिंग। क्योंकि बहुत सारा बव अबद्ध मेद बॉडी में रहता है, सो ऑब्वियसली जो पेशेंट का बद्ध मेद है, जिससे कि पेशेंट का मसल मास क्रिएट होता है, वो कम हो जाता है। तो पेशेंट में न सिर्फ हमें एरोबिक्स कराना है, एनर्जी का एक्सपेंडिचर कराना है, बल्कि मसल स्ट्रेंथनिंग भी करानी है। तो ये मसल स्ट्रेंथनिंग कराने के लिए आप, अगर पेशेंट सूर्य नमस्कार करता है या योगासन करना चाहता है तो कर सकता है, और they are more interested with the weight training and pellets, that will also do. Now the next part is the meditation, जो कि स्ट्रेस के लिए हम लोग यूज करते हैं। सो मेडिटेशन में जो डायबिटीज के लिए बेस्ट इफेक्टिव मेथड है, दैट इज द माइंडफुलनेस या कांस्टेंट स्टेट ऑफ मन आत्म इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। दिस पार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जिस टाइम पे आचार्य ने ज्ञान के बारे में बताया है, शारीर स्थान में आचार्य चरक ने, उन्होंने कहा है कि किसी भी चीज को जानने का जो हेतु है वो हमेशा आत्मा रहेगा। सिर्फ इंद्रिय और उनके अर्थ होने पर या सिर्फ मन के रहने पे हमें उनका ज्ञान नहीं होता। मन, आत्मा, इंद्रिय और उनके अर्थों का सन्निकर्ष एक साथ होना चाहिए। इट सिंपली मीन्स टू बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट सिनेरियो। आपको अभी में रहना है, न तो
पीछे जाना है, न तो आपको रिप्ले ऑफ द पास्ट में जाना है, न तो आपको फ्यूचर थिंकिंग करनी है. वट एवर हियर इज गोइंग ऑन, यू हैव टू बी एसोसिएटेड विद दिस टेक्निक शुड बी टीच टूवर्ड्स द पेशेंट. आपको अपने हर पेशेंट को ये जरूर सिखाना है. इट इज ऑल्सो नोन एज माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, जो कि अभी जिस पे रिसर्चेस चल रहे हैं. इट इज नथिंग बट मन आत्मा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष. इसका सबसे इजी वे जो है वो ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं. प्राणायाम कराना. पेशेंट जिस टाइम खाना खा रहा है, ओके, जिस टाइम श्वास ले रहा है, जिस टाइम कुछ देख रहा है, या स्किन पे टैक्टाइल जो ये है स्टिमुलेशन है उनको फील कर रहा है, इन सभी में उसको मन आत्म इंद्रियार्थ सन्निकर्ष रखना. और इसको सिखाने का सबसे इजी तरीका है ब्रीदिंग टेक्निक्स. हम लोग प्राणायाम से स्टार्ट कर सकते हैं. all these things, this counseling, lifestyle modification, diet, workout, and the meditation or the mindfulness is going to impact the person, and it is going to reverse the insulin resistance in the patient. क्योंकि ये जो पांचों पार्ट है ये आपके जितने भी रिस्क फैक्टर्स थे उनको नलिफाई करेंगे. सी देयर आर फ्यू रिस्क फैक्टर विच वी कांट अवॉइड. फॉर एग्जांपल एज है, जेनेटिक फैक्टर्स है, इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते. लेकिन जो एक्वायर्ड पार्ट है, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीजेस, स्ट्रेस फैक्टर, gestational diabetes, these could be avoided. And if we are going to take all these 5 components, the patient can be well managed with the timely diagnosis and the strategies. Okay. And the last, medication. Pre-diabetes में usually medication prefer नहीं करते हैं, because if patient is going to develop diabetes, then again they have to take the medication. और अगर पहले से ही आप start करते हो, lifestyle modifications नहीं कराते, it can lead towards the beta cell decompensation. वैसे metformin जो है, it is considered with the most effective one. But अगर आप आयुर्वेदा में ऐड करना चाहते हो, you have those medication which do have the property of the कर्षण, या फिर जल भाव का जो ये करते हैं, शुष्क करने का काम करते हैं, जो बहु अबद्ध मेद और बहुद्रव श्लेष्मा को कंट्रोल करने का काम करते हैं, वो मेडिकेशन आप यूज करते हो. दीज आर नेम टू फ्यू जो बहुत इजीली आप पेशेंट को ऐड कर सकते हो. यहाँ पर ये जो मेडिकेशन के नाम है, फॉर एग्जाम्पल हरिद्रा, आंवला, गुडूची है ना, गुडमार है, यव का प्रयोग करना, त्रिफला, विजयसार, लहसुन का, कैशोरे गुगुलू, शिलाजीत विच इज वेरी मच इफेक्टिव इन प्रीडायबिटिक हो. आपको ध्यान जो रखना है वो ये कि आप चाहो तो इनको एज अ मेडिकेशन दो, या यूजुअली जैसा मैं अपने पेशेंट्स में करती हूँ, इनमें से किसी एक प्रकार का जल आप देना शुरू कर सकते हैं. विजयसार युक्त जल आप दे सकते हैं पेशेंट को. पेशेंट को गुडूची दे सकते हैं, यव युक्त रोटी खाने के लिए दे सकते हैं. मोर टुवर्ड्स द आहार विहार देन द मेडिकेशन. या शिलाजीत का यूज या फिर आरोग्यवर्धनी का यूज एज अ रसायन थेरेपी आप कर सकते हैं. So it is not going to create any sort of burden on patient's agni, और अगेन पेशेंट के लिए बहुत इजी हो जाता है. यहाँ पर एक जो ट्रिक है विच इज वेरी मच यूजफुल, जो मैंने अपने पेशेंट्स में देखा है, कि जब कभी भी हम पेशेंट्स को, जैसा कि हम लोग को पता है कि हर तरफ जो आजकल का आहार विहार है, जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, उसमें हर फूड में क्लेद बहुत ज्यादा है. तो द इजी थिंग विच यू कैन डू विद द पेशेंट, आप पेशेंट को हमेशा बॉयल पानी पीने के लिए बोलिए, विच इज गोइंग टू मेक इट मोर लघु एंड हैविंग लेस क्लेदकारक कंपोनेंट्स. और जो कषाय रसयुक्त या फिर तिक्त रसयुक्त जो औषधियां हैं, उनसे सिद्ध जल पीने के लिए उन्हें कहिए. सिंपली आप अदरक, काली मिर्च या हरित की यूज कर सकते हैं पेशेंट को जल यूज करने के लिए. या फिर अगर ठीक है, पेशेंट बोलता है कि नहीं मैं पानी पूरे टाइम पीता हूं तो नहीं ले सकता, दे कैन यूज इट एज अ रसायन की औषध की मात्रा में न लेकर के आप उन्हें रसायन की मात्रा में इन्हें दे सकते हैं. एंड शिलाजीत या कैशोरे गुगुलू या फिर आरोग्यवर्धनी आप एज अ रसायन थेरेपी पेशेंट में यूज कर सकते हैं, विच डेफिनेटली गोइंग टू रिड्यूस द इंसुलिन रेजिस्टेंस. बेसिकली ये सारे जो मेडिकेशन हैं, दे वर्क ऑन द insulin sensitivity. They are going to increase the insulin sensitivity, and hence they are highly recommended in the diabetes. And here I end my presentation.
And I hope that these strategies will make you help to manage your patients. And thanks for the patient listening. Thank you. Thank you very much, ma'am, for your wonderful and informative lecture. We will take a 1 minute break for a question and answer session. We requesting delegates, please put your queries regarding today's topic in chat box only. No direct question will be entertained. Hello, Dr. Shivani ma'am, can we start? Yes, sir. Yes, sir. We can start. Okay. First question from Dr. Madhvi Yadav. Please tell oral medicine, Ayurvedic preparation for the pre-diabetic patients. ओरल मेडिकेशन ना आप आरोग्यवर्धिनी शुरू कर सकते हैं। अगर सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जहां तक हो सके मेडिकेशन ना दे, पर अगर आपको फिर भी लगता है कि देना चाहिए तो आप पेशेंट को आरोग्यवर्धिनी दे सकते हैं, कैशोरे गुगुलू दे सकते हैं, और इवन त्रिफला गुगुलू वर्क्स वेरी वेल इन द पेशेंट्स। सो दीज आर द प्रिपरेशन। और अगर आपको ऐसा है कि लिक्विड कुछ देना चाहते हैं आप, और पेशेंट बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो आप यसाका भी दे सकते हैं। यसाका इज वेरी गुड प्रिपरेशन फॉर बेटर इंसुलिन सेंसिटिविटी, बहुत अच्छा पेशेंट्स में काम करता है। सो यू कैन गिव देम दीज मेडिकेशंस। Thank you very much, ma'am. Next question from Dr. Manjari Ranade. Is there any role of methi ka beej in pre-diabetic? हाँ हाँ, बिल्कुल है। मेथी का देखिए, यहाँ पे सिर्फ कुछ ही नाम मैंने दिए हैं। वो सभी द्रव्य जो कर्षण कारक हैं,
तिक्त, कटु या कषाय है जो जल महाभूत का या पृथ्वी महाभूत में लाघव लाने वाले हैं, वो सभी आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है तेज पत्र यूज करना, आप वो यूज कर सकते हैं, मेथी का यूज कर सकते हैं। सभी वो द्रव्य जो लाघव लाने के लिए या कर्षण लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दे कैन बी एक्सेलेंटली यूज इन प्री डायबिटीज एंड बेटर टू यूज इन आहार द्रव्य कल्पना। यस सर। Okay, thank you very much, ma'am. Next, some appreciation words from Dr. Sakshi. Thank you for a wonderful lecture, ma'am. Next question from Dr. Swaroop. Jala, you said, should it prepared as a Kvat Kalpana? जल, अच्छा, जो पानी हम लोग को नहीं क्वाथ में आपको नहीं यूज करना है। देखिए, हम लोग जब जल को लघु करने के उद्देश्य से करते हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू, पहली चीज तो आपको बॉयल वाटर यूज करना है। अच्छे से बॉयल कर लीजिए, जो भी आप फिल्टर्ड पानी पीते हैं या जैसा भी। बॉयल करते समय जब बॉयल हो जाता है, तो जो भी आपको कटु, तिक्त या कषाय द्रव्य उसमें ऐड करना है, समझो आप काली मिर्च यूज करना चाहते हो या लौंग यूज करना चाहते हो, यू जस्ट हैव टू कीप दैट पार्ट इन द यूटेंसिल, जो भी आपका बर्तन है उसमें डाल के रखिए थोड़े समय तक, तो अपने आप उसका लघुता का गुण लेता जाता है। ठीक है, तो क्वाथ नहीं बनाना है। सी, आपको हर वो कल्पना यूज करनी है जो पेशेंट डेली बेसिस पे यूज कर सके, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि भाई मैं अदरक का या फिर विजय सार पेशेंट को दूं और वो रेगुलर ले, तो दिस कांट बी एक्सपेक्टेड। लेकिन क्योंकि और बिकॉज डायबिटीज या प्री डायबिटीज जो है ना, ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, बहुत धीमे 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 और लंबे समय तक होता है। तो आपको हर वो मेजर यूज करना है जो आप कम क्वांटिटी में, कम इंटेंसिटी में, लेकिन रेगुलर यूज कर सको। तो क्वाथ नहीं बनाना है। बॉयल किए हुए जल को जो भी द्रव्य आप ऐड करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स प्रेजेंटेशन, उसका जो प्रकृति है उसके अकॉर्डिंग, वो सिर्फ आपको उसमें डालना है और उसके गुण आने तक रखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग घर में पानी बॉयल करते हैं, तो उसको ठंडा होने के लिए जितना देर रखा, 3 से 4 घंटे लगते हैं पानी को नॉर्मल होने में, उतना देर आप उस द्रव्य को ऐड करके रख सकते हैं। ओके। Okay, thank you very much, ma'am. Next question from Dr. Manjusha Poddar. How can we manage DM in the kidney diseases? ये तो पूरा अलग हो जाएगा मैम। अगर आप किडनी डिसऑर्डर्स यूज के बारे में सोच रहे हो और पेशेंट को डायबिटीज है, तो यहाँ पर वात का जो दृष्टि है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द किडनी डिसऑर्डर्स, तो वहां पर आपको पहले पेशेंट को जो उसका बल है ना, उसका स्थापना करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर किडनी तक डिसऑर्डर पहुंच गया है, जो वात की दृष्टि है वो अगर किडनी को भी अफेक्ट कर चुकी है, इट मीन्स आपको पूरा डिफरेंट पाथ लेना पड़ेगा। जहां प्री डायबिटीज में हमारे पास ये फ्रीडम होता है कि वी नीड नॉट टू वरी अबाउट द वात, वहीं पर जब हम लोग डायबिटीज में, वो भी किडनी डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस। तो वहां पर हम लोग पहले पेशेंट में बल स्थापन करते हैं, उसमें मृदु शोधन करके स्थापन बस्ती का यूज करते हैं, देन वी हैव टू स्टार्ट द शमन एंड ब्रह्मण चिकित्सा। तो वो पूरा ही अलग पार्ट है। आई थिंक आपको अगर क्वेश्चन मींस स्टिल इफ यू वांट टू डिस्कस, आप मुझे पर्सनल पे मैसेज कीजिए, आई विल आंसर यू। यस सर। Okay, thank you very much, ma'am. Next, some appreciation words from Dr. Anuradha. Excellent presentation and informative lecture through both pathies, basic aspects for the pre-diabetics. Next question from Dr. Madhvi Yadav. Patya Patya in pre-diabetic. पथ्य अपथ्यन प्री डायबिटिक, ठीक है। हम लोग को वो सारे मेजर्स लेने हैं जो मेदोहर होंगे, अर्थात पेशेंट में जो जब आचार्य ने प्रमेह की के संप्राप्ति के लिए निदान बताया है ना, तो वहां क्या बोला है कि आस्य सुखम, स्वप्न सुखम, दधीनी, ग्रोम में आदक, अनु पया रसांसी। तो जो अभी के जो मेजरमेंट्स है ना, अगर हम लोग करंट सिनेरियो में देखें, तो क्या करता है, आपको पेशेंट को लघु आहार लेने लगाना है। ठीक है, लघु आहार मतलब वो खाएगा तो रोटी ही ऑब्वियसली, क्योंकि अभी गेहूं की रोटी ही सभी खाते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें यव को आप ऐड करा सकते हो। पेशेंट में पोर्शन साइज आप कम कर सकते हैं। पेशेंट को शक्कर की जगह आप जो ओरिजिनल गुड़ रहता है, वो नहीं जो मार्केट में मिलता है, जो डायरेक्ट जो लोग गुड़ बनाते हैं वहां से अगर आप ले सकते हो, दो सॉर्ट ऑफ गुड दे कैन यूज। आप मधु को ऐड कर सकते हैं पेशेंट में, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड समथिंग, इट शुड बी रिप्लेस्ड विद समथिंग।
ठीक है, अगर आप ये कह रहे हो कि भाई मैं ये मिला करके पेशेंट को रोटी खिलाऊंगा, बट पेशेंट अब 2 की जगह बोलेगा नहीं मुझे इससे स्वाहित्य नहीं होता, आई विल टेक द 3, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो जितने निदान आचार्य ने बताए हैं प्रमेय के, उनका आपको रिवर्सल करना है। व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर कि ये पेशेंट के आहार विहार में ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो जो जो मेजर्स पेशेंट ले रहा है, समझो अभी आज के टाइम में अगर हम प्री डायबिटिक की बात करें तो वो एज ग्रुप जो रहता है वो 20 से 40 वाला है, मोस्टली 30 वाला। अभी तो 30 से अबव भी आपको डायबिटिक पेशेंट्स मिलते हैं। इन पेशेंट्स में बेसिकली क्या होगा, ये लोग क्या खाएंगे, ये ब्रेड खाते हैं, बर्गर खाएंगे, इनको बहुत सारा काम होता है, सो दे आर ऑलवेज गोइंग टू ड्रिंक द कार्बोनेटेड थिंग्स, क्योंकि खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, बैठ के काम करते रहते हैं। सो यू हैव टू गो टू द रिवर्सल। आपको पेशेंट को बताना है कि आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं पीना है, आपको किसी न किसी मेडिसिन से एसोसिएटेड जल लेना है। पेशेंट को, जो भी पेशेंट फास्ट फूड खा रहा है, उसमें आप टाइप चेंज कर सकते हो। सी दे आर गोइंग टू ईट, आप उसको कितनी भी बार समझाओगे, क्योंकि जो टेंडेंसी है ना, हम लोगों ने अभी जब डिस्कस किया कि वो हमेशा 1 स्टेप बैक जाता है अपनी एक्टिविटी में, तो वो टेंडेंसी है। यू हैव टू मेक द यूज ऑफ युक्ति। ठीक है, जो भी आहार विहार परिकल्पना आप करते हैं उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लघुता लाने का प्रयास करें, जो कि कफ और मेद दोनों को रिड्यूस करेगा। ओके, Okay, thank you very much, ma'am. Next question from Dr. Swaroop. Any ASO or ARIST useful in a pre-diabetic patients? प्री डायबिटिक में अगर आप मेरे मतलब जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उसमें पूछोगे तो यसाका इज वेरी गुड, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। पेशेंट में इंसुलिन जो सेंसिटिविटी है उसको इतनी जल्दी बढ़ाता है। सो आशा वरिष्ठ मत दीजिए, बिकॉज कषाय देना बेटर है। अगर आप इवन अर्जुना रिस्ट बहुत अच्छा काम करता है, बिकॉज इट इज गोइंग टू रिड्यूस द डिस्लिपिडीमिया। तो अगर जहां तक हो सके जितने भी अर्जुन का क्वाथ है या फिर यसाका आप यूज कर सकते हैं, या फिर सिंपली इसका दशमूल क्वाथ आप यूज कर सकते हैं, या फिर अर्जुन का क्वाथ। आसव अरिश को अवॉइड करना चाहिए जहां तक हो सके, कि आसव अरिश बहुत इजी होते हैं लेने में, कोई भी पेशेंट ले लेता है। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम है कि दे हैव द लिटिल बिट ऑफ अल्कोहलिक प्रॉपर्टी, जो कि किसी किसी पेशेंट के लिए अच्छा भी होता है, जिनकी अग्नि बहुत मंद है उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट देता है इंसुलिन इसके सेंसिटिविटी के लिए। लेकिन इन जनरल आपको कषाय पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ओके, Okay, thank you, ma'am. Next question from Dr. Saili. Ma'am, how is Jambu preparation like Jambu also is useful in pre-diabetic? हाँ जम्बू भी है, बेटर वुड बी लाइक अगर आप उसका चूर्ण यूज करते हैं, जितना जितना लेस प्रोसेस्ड आहार आप उसे देंगे दैट वुड बी बेटर। सो जब भी हम लोग प्री डायबिटिक्स में किसी भी औषध कल्पना की भी बात करते हैं, तो पेशेंट की अग्नि को प्रिजर्व रखते हुए आपको यूज करना है। सो इट वुड बी मच बेटर कि जो जम्बू फल होता है उसका, सॉरी बीज होता है जम्बू का, उसका चूर्ण यूज करें, दैट वुड बी मच बेटर। और अगर नहीं होता है, पेशेंट भी ऐसा है कि भाई उसको नहीं यूज करना है, तो ठीक है, यू कैन यूज जम्बो आसो, लेकिन ट्राई टू मेक देम काउंसिल अबाउट द लेस प्रोसेस। चूर्ण खाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक, Okay, thank you, ma'am. Next question from Vaidya Jaya Ramteke. How to treat patient having pre-diabetic with GERD, gastroesophageal reflux? कुछ भी जीआरडी में अगर है भी पेशेंट को, तो देर इज नो इश्यूज। पेशेंट कैन पेशेंट को आपको तीक्ष्ण जितनी भी औषधियां हैं उनको आपको अवॉइड करना है, जो कि यूजुअली हम लोग डायबिटीज में, वैसे प्री डायबिटीज में नहीं देते हैं। सो द सेम लाइन आई हैव डिस्कस्ड इन द मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज आपको यूज कर सकते हैं, नो इश्यूज विल बी देयर। Okay, मीन्स thank इफ you यू very वांट much, टू ma'am. से सम स्पेसिफिक सिम्टम देन यू कैन मेंशन। अगर अदरवाइज जीआरडी के भी पेशेंट जो रहते हैं, जो नॉर्मल प्री डायबिटिक स्ट्रेटजी है वो आप फॉलो कर सकते हो। ओके, Okay, thank you very much, ma'am. Next question from Dr. Ravindra Mane. Is there any role of Panchakarma in pre-diabetes? हाँ बिल्कुल है। मतलब अगर प्री डायबिटीज के बारे में जब हम लोग बात करते हैं ना, तो प्री डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं दे आर नॉट वेरी मच अवेयर विद दीज थिंग्स। लेकिन अगर पेशेंट रेडी है तो ऑब्वियसली यू कैन यूज।
बिल्कुल आप जो सारी चिकित्सा आप ओबेसिटी के लिए यूज कर रहे हो, जहाँ पे आप मेद धातु दृष्टि को आप करेक्ट करते हो, वो सारी आप यूज कर सकते हैं. यस यू कैन, एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इफ पेशेंट इज गोइंग टू सपोर्ट यू, आपके साथ कोऑर्डिनेट करता है प्रॉपर्ली, तो यस यू कैन यूज. Okay, thank you very much, ma'am. Next question from Dr. Preeti Vani. Is good jaggery increase sugar level? यस इट डज, करता है. देखिए जहां पे हम लोग जब ये बात करते हैं कि आपको गुड़ यूज कर सकते हैं, व्हाट इट सेज कि आप जहां पे शक्कर यूज कर रहे हैं उसकी जगह आप गुड़ यूज करोगे. इट्स नॉट लाइक दैट कि आप गुड़ को एज अ मेडिसिन आप ऐड कर रहे हो. व्हाट डज हैपेंस कि शुगर को जब गुड़ को जब प्रोसेस करके शुगर में कन्वर्ट किया जाता है, देयर आर एन नंबर ऑफ दूषी विष जो यूज किए जाते हैं, केमिकल्स यूज किए जाते हैं जो कि इंफ्लेमेटरी स्टेट को और ज्यादा बढ़ाते हैं. टीएनएफ के कंसंट्रेशन को या फिर कोर्टिसोल के लेवल को ये जो केमिकल्स होते हैं वो बढ़ाते हैं. इसके लिए हम लोग कहते हैं कि गुड़ आप यूज कीजिए इन स्पाइट ऑफ शुगर, न कि एडिशन करना है गुड़ का. तो गुड़ ऑब्वियसली शुगर का लेवल बढ़ाता है, पर दोस्त जिनको करना है ये मीठा खाना ही है भाई, तो आप कम नुकसानदेह चीज को, सो यू कैन यूज गुड़ इन स्पाइट ऑफ शक्कर. जहां पे भी आपको शक्कर का प्रिपरेशन करना है आप गुड़ यूज कर सकते हैं. अगेन गुड़ के साथ अच्छी चीज ये होती है कि इसका जो क्लेद कारक भाव है ये कम है शक्कर की अपेक्षा, तो ये कम नुकसान करता है. सो आहार विहार में हम लोग गुड़ शक्कर को रिप्लेस करते हैं विद गुड़. ओके. Okay, thank you very much, ma'am. Next question from Dr. Amruta and Dr. Madhvi Yadav. Uh, what should be the schedule for the food routine? Twice a day or thrice breakfast should be preferred or not? सी इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन्स वर्क शेड्यूल, उनका प्रकृति कैसा है. अगर कोई शुक्र शुक्र सार का कोई पेशेंट है तो ऑब्वियसली वो 3 टाइम खाना खाएगा ही खाएगा, उसको क्योंकि भूख ही वैसी लगेगी. कोई वात प्रकृति वाला पेशेंट है वो बार-बार खाएगा ही, भले कि वो डायबिटिक हो या ना हो. व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि पेशेंट का जो नॉर्मल शेड्यूल था, जो उसको पहले भूख लगती थी, क्या ये उससे बढ़ गई है? अगर पेशेंट 3 टाइम जो खाना खा रहा है वो उसके जो एनर्जी नीड है उससे ज्यादा है, यूजुअली इट इज कंसिडर्ड एज कि ब्रेकफास्ट जो है वो करने से जो आपका इंसुलिन रिस्पॉन्स है वो ज्यादा अच्छा रेगुलेट रहता है, विच वी सी इन द अवर क्लिनिकल सिनेरियो, कि अगर आपने ब्रेकफास्ट अच्छे से किया है तो लीवर पे पड़ने वाला जो बर्डन होता है, देखो जो फास्टिंग हम लोग शुगर चेक करते हैं ना, ये यूजुअली इंडिकेट टुवर्ड्स द लीवर्स रिस्पॉन्स फॉर ग्लूकोज. जैसे ही कम होगा लीवर उसे एक्टिवेट करता है. तो अगर आप पेशेंट को ब्रेकफास्ट कराते हो प्रॉपर, तो वो उसके लीवर पे पड़ने वाले लोड को कम करता है, विच इज गोइंग टू मेक अ बेटर अग्नि ऑफ दैट पर्सन. लेकिन अगेन ये बहुत ज्यादा रेशनल क्वेश्चन है. समझो कोई ऐसा पर्सन है जो 11 बजे एक्टिव होता है, सुबह के 11 बजे, तो उसमें ब्रेकफास्ट का कोई चांस ही नहीं बनता क्योंकि वो अभी तक एक्टिव ही नहीं हुआ था. लेकिन दोज पीपल हु आर वेकिंग अप एट 5 o'clock एंड दे बिकेम एक्टिव, जैसे कि यूजुअली मदर्स के साथ होता है जिनके बच्चे स्कूल में रहते हैं, तो उनके लिए ब्रेकफास्ट नेसेसरी है भले कि वो डायबिटिक हों. सो इट्स वेरी मच रेशनल क्वेश्चन. आपको हर पेशेंट में चेक करना पड़ेगा कि उसका वर्कलोड, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, उसकी प्रकृति और उसकी सारता किस चीज के लिए अलाउड करती है. ठीक है, अगर कफज पेशेंट है और आपको दिख रहा है कि वो शुक्र, अगर वो मेदसार है, सो दिस पेशेंट कैन इजीली बियर. आप उसमें एंड्योरेंस का ये कर सकते हो, एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, पर वो पित्तज होगा तो वो एंड्योर नहीं कर पाएगा. यू हैव टू मेक द आहार कल्पना जो पेशेंट को कि पित्तज या उसके जो अग्नि का कंपोनेंट है उसको पैसिफाई करे. तो इट इज वेरी मच रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर पर्सन. ठीक है, तो ट्वाइस टाइम थ्राइस टाइम इट टोटली डिपेंड ऑन दैट चिकित्सा पुरुष जिसको आप कंसिडर कर रहे हो. But on an average, breakfast should be preferred in comparison to other food like lunch या डिनर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ब्रेकफास्ट है. डिपेंड्स कि उस पर्सन का ब्रेकफास्ट आप कब से स्टार्ट करते हो. ओके. Okay, thank you very much, ma'am. Nicely explained. Next question from Dr. Prajakta and Dr. Bharati. As you said, Arogyavardhini and Shilajit are used as a rasayan in pre-diabetic stage. Is there any time duration and Anupan? हाँ, आरोग्यवर्धिनी और शिलाजीत जो है ये दोनों ही आप जब रसायन के लिए लोगे तो ऑब्वियसली इसकी मात्रा नॉर्मल से कम होगी.
तो आरोग्यवर्धिनी जब या शिलाजीत हम लोग जब सोचते हैं तो आपको डिपेंड ऑन द पेशेंट, उसकी अगेन आपको अग्नि और ये देखना है प्रकृति कैसी है, बट ऑन एन एवरेज हम लोग पेशेंट में 1 ग्राम ऑफ आरोग्यवर्धिनी, या अगर वटी के फॉर्म में आप ले रहे हैं तो 2 वटी जो आरोग्यवर्धिनी की है वो सिर्फ दिन में सिर्फ एक बार देना है, ओनली 1 टाइम। अगर शिलाजीत आप पेशेंट को एज अ रसायन फॉर्म दे रहे हो तो पूरे दिन में 1 ग्राम ऑफ शिलाजीत simply with water, with warm water. Always remember to use warm water in pre-diabetic patients. Okay? जब भी रसायन कल्पना आप यूज करोगे, आप उसके चिकित्सीय मात्रा से कम हमेशा यूज करेंगे। ओके? Okay. Okay. Thank you very much, ma'am. Next question from Dr. Madhvi Yadav. Is fasting is advisable and how to do in what way? Yes, fasting is again very much rational question. उस पर्सन के लिए आपको फास्टिंग करानी है जो इन क्वेश्चन है। अभी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो दिन में 3 बार खाना खाता है, तो उसके लिए फास्टिंग का मतलब हो गया कि आप उसको 2 टाइम खाना खिला रहे हो। जब भी हम फास्टिंग के बारे में सोचते हैं, लंघन के बारे में सोचते हैं, इट शुड बी लाघव कारक। तो फास्टिंग के बहुत सारे टाइप हैं, बहुत सारे टाइप, जैसे कि लंघन के इतने सारे टाइप हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन। हर एक व्यक्ति में जिसका बल अभी भी इंटैक्ट है, जिसमें अभी भी संसह क्षमता है, मतलब इंड्योरेंस है, आप हर उस व्यक्ति में फास्टिंग करा सकते हो। बट फास्टिंग कराते से आपको सिर्फ जो एक क्राइटेरिया ध्यान में रखना है, इट शुड गेट टू द 1 स्टेप अहेड। 4 रोटी खाता है, 3 रोटी खिलाना है। रोज रात में लेट नाइट फूड करता है, उसे जल्दी खाना खिलाना है। 2 खाने के बीच का गैप आप बढ़ा सकते हो। टाइप ऑफ फूड आप चेंज कर सकते हो। रोक्ष द्रव्य, लघु द्रव्य, कर्षण कारक, अग्नि महाभूत वाले द्रव्य आप उसे ज्यादा यूज करा सकते हो। सो फास्टिंग इस एसोसिएटेड, पित्तज व्यक्ति को आपको फास्ट कराना है तो आप पूरा दिन उसको भूखा नहीं रख सकते, वो नहीं करेगा, है ना। कफज वाला पूरे पूरे दिन भूखा रह जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन देयर प्रकृति, है ना। वातज होगा तो वो थोड़ा भी अगर आपने उसको ये कराया है, फास्ट कराया, तो वो इरिटेट हो जाएगा, स्ट्रेस फैक्टर बढ़ेगा पेशेंट में। सो आपको क्या करना है, पेशेंट में 1 स्टेप अहेड जाना है। जो भी उसका अभी खाने का लेवल है, जो उसका साहित्य का लेवल है, उसको आपको डिक्रीज कराना है पेशेंट में। ठीक है? ओके? Okay. Thank you very much, ma'am. This was the last question from our today's session. Once again, thank you very much for your wonderful and elaborative lecture on pre-diabetic lab to OPD. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. And thanks to the team and the audience for listening me patiently. Thanks and stay safe in this COVID scenario. Hope for the best. Thank you, sir. So we declare our today's session is over. You can leave now.